Good morning, students. Today in this video we shall try to combine two or more simple sentences into one simple sentence by using nominative absolute. First, you should try to know what is nominative absolute. This is the third method of combination by nominative absolute. By using or by nominative absolute. Using a nominative absolute, you can combine two or more simple sentences into one simple sentence. But before starting this method of combination, you should try to know what is nominative absolute, because I think that this word may be new for you. There are two words, nominative and absolute. Nominative stands for subject. Nominative means subject, and absolute means free. So we can say that nominative absolute is a kind of free subject. अर्थात नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक प्रकार का स्वतंत्र कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, जिस पर वाक्य के किसी भी क्रिया का असर नहीं पड़ता, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. It is always free. That is why it is known as nominative absolute. And how can you make a subject in nominative absolute? There is a formula by using having plus V3. Having plus V3, that is equal to nominative absolute. Nominative absolute. So, if you are going to change a subject into nominative absolute, you should use the word having before the third form of the verb. Now you should also know, अब आपको यह भी जानना चाहिए कि when this method is used in the combination of simple sentences into one sentence, one simple sentence. इसके लिए देखा जाता है कि जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस के जो समूह दिए गए हैं, ग्रुप दिए गए हैं, जिनको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, उन सभी सेंटेंसेस के जब सब्जेक्ट्स जो है इक्वल नहीं होते हैं, उनके कर्ता समान नहीं होंगे, और सभी वाक्यों के वर्ष में एक प्रकार का काजल रिलेशन होगा. काजल रिलेशन कारण का, कोई किसी न किसी कारण से दूसरे वाक्य की क्रिया हो रही होगी, तो वह रिलेशन काजल रिलेशन कहलाता है. अर्थात उसको हम बोलते हैं कारण से संबंधित, अर्थात कारण और उसके परिणाम का संबंध दोनों क्रियाओं के बीच में रहता है. जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहले एग्जाम्पल से आसानी से इसको समझा जा सकता है. The sun
set. The stars came up in the sky. You can see that there are two simple sentences, and this is a set of simple sentences, and you are asked to combine this group of simple sentences into one simple sentence. Then you can notice in these two sentences, इन दोनों वाक्यों में आप देख सकते हैं कि the subject of the first sentence is the sun and the subject of the second sentence is the stars. The sun and the stars, you can easily understand it that in these two subjects, the sun, अर्थात इन दोनों कर्ताओं में सूर्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या है, नॉमिनेटिव है. नॉमिनेटिव का मतलब यह जो है एक सब्जेक्ट है एंड एब्सोल्यूट भी है, यह फ्री है, क्योंकि सूरज छिपेगा तो तारे आसमान में दिखाई देंगे, सूरज उगेगा तो तारे आसमान में डिसअपियर हो जाएंगे, अर्थात दिखाई नहीं देंगे. सो वी कैन से दैट द सब्जेक्ट द स्टार्स डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट द सन. द सन इज अ फ्री सब्जेक्ट, दैट इज भाई द सन इसमें का क्या है, वो फ्री सब्जेक्ट है, इसीलिए इसको ही हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट अर्थात स्वतंत्र कर्ता बनाएंगे. और उसके लिए अभी आपको बताया गया कि इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज करने के लिए हम इस वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग का प्रयोग कर देंगे, तो यह जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज हो जाएगा. इसको हम ऐसे कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे. पहले फ्री सब्जेक्ट को लाइए, द सन having set, द सन having set, और उसके बाद से कॉमा का प्रयोग करके दूसरे सेंटेंस को इसमें कंबाइन कर देते हैं. द स्टार्स came up in the sky. इस तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके जो है हम क्या करते हैं, वो बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं. दूसरा और भी एग्जांपल देखते हैं. द पुलिस arrived, the police arrived. The thieves ran away. The police arrived, the thieves ran away. पुलिस आ गई, चोर वहां से भाग गए. तो you can also see in these two sentences that the subject of the first sentence is the police and the subject of the second sentence is the thieves. In these two subjects, the police and the thieves, police is a free subject. The police can go anywhere at any time. That is why we can say that the police is a free subject. So when you are going to combine these sets of simple sentences into one simple sentence, then you can easily decide that these sets of sentences may be combined only with the help of nominative absolute. इस सेट को हम केवल नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके ही कंबाइन करेंगे और सिंपल बनाएंगे, और यह कंबाइंड हो जाएगा इस तरह से. द पुलिस, पहले फ्री सब्जेक्ट को लिखेंगे, द पुलिस हैविंग अराइव्ड,
the police having arrived, comma, the thieves ran away. Okay, so you can combine, you can use nominative absolute like this. इस तरह से आप nominative absolute का प्रयोग कर सकते हैं। ये मान लीजिए आप, अगर आपका ये पहला रूल है, रूल 1, इसमें और भी रूल हैं, उनको भी आपको बता दे रहा हूं। रूल 2 दूसरा, यदि सिंपल सेंटेंसेस के ऐसे समूह दिए गए हों जिनमें से जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट फ्री है और उस सब्जेक्ट के बाद से इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं किया गया है, इफ दे हैव नॉट बीन यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब इन ए सेंटेंस इन विच द फ्री सब्जेक्ट हैज बीन गिवन, जिसमें फ्री सब्जेक्ट को दिया गया है और उसमें इज, एम, आर, वाज, वर को हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं लिखा गया है, तो और इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब में नहीं है तो वह टू बी के रूप में होगा। तो टू बी के रूप में अगर वह है, कोई एक भी है, तो उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज करने के लिए आप ही वर्ब, मेन वर्ब तो उसमें होगा नहीं। जब मेन वर्ब नहीं होगा तो किसके थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग का प्रयोग करेंगे? हैविंग का प्रयोग जो है V3 के पहले ही किया जा सकता है, इसलिए वहां पर अगर केवल इज, एम, आर, वाज, वर हो तो उसको हटा करके उसके स्थान पर बीइंग शब्द का प्रयोग करेंगे। सो इज, एम, आर, वाज, वर, if these verbs have been used in the form of to be, not as helping verbs, so you should use being, removing these verbs। इन क्रियाओं को रिमूव करके आप बीइंग शब्द का प्रयोग करेंगे। जहां पर आप हैविंग का प्रयोग कर रहे थे वहां पर आप हैविंग का प्रयोग ना करके बीइंग का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। The picture was interesting. The picture was interesting. We enjoyed it very much. We enjoyed it very much. There are two simple sentences. The first simple sentence, the picture was interesting, and the second simple sentence, we enjoyed it very much. So the picture is a free subject in these two simple sentences because क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जब पिक्चर स्टार्ट हो तो उसमें जो भी विजिटर्स होते हैं, ऑडियंस होते हैं, वो जो देखने वाले होते हैं वो जो है उनको वो कई तरह के हो सकते हैं। उनमें से कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है, कुछ लोगों को खराब भी लग सकता है, कुछ लोगों को जो है पसंद भी नहीं आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में पिक्चर तो वो चलती ही रहेगी, उसको तो चलते ही रहना है। तो अब यह फ्री है, यह किसी पर डिपेंड नहीं है, लेकिन इस पर जो है वी अर्थात अन्य सब्जेक्ट जो है डिपेंड होते हैं। सो वी कैन से दैट द पिक्चर इज अ फ्री सब्जेक्ट एंड दैट इज व्हाई इट कैन बी मेड एज अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसी को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज करेंगे। बट लेकिन यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है दैट देयर इज नो फाइनाइट वर्ब इवन इन दिस सेंटेंस। देयर is proper use of to be was, that is why you should not use having because there is no main verb even in this sentence। यहाँ पर इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है,
इसलिए हैविंग का प्रयोग आप नहीं करेंगे, was आया है, that is why you should use being on the place of was. was के स्थान पर आपको being का प्रयोग करना है। इसको कंबाइन करेंगे। फर्स्ट you should write the free subject, the picture being interesting, comma, we enjoyed it very much. Okay, so this sentence has been combined into one simple sentence. This is only one simple sentence. हालांकि आपको ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, but it is only a simple sentence. Now you can take another example. आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। The weather was stormy. Suppose that the weather was stormy. The weather was stormy. They could not go out. They could not go out to the school. They could not go out to the school. Combined. The weather being stormy, comma, they could not go out to the school. इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, सिंटैक्स में बताया जाएगा। स्कूल के पहले द का प्रयोग कब किया जाता है, कब नहीं किया जाता है। तो आप ऐसा ना समझें कि यह जो है सेंटेंस गलत है, आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। द का प्रयोग नहीं भी करेंगे, द का प्रयोग यहाँ हम कर भी सकते हैं, उसके बारे में आप जो है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये है रूल 2, जिसमें आपने सीखा कि यदि किसी जो है सेंटेंस में जो फ्री सब्जेक्ट दिया गया है उसका वर्ब जो है इज, एम, आर, वाज वर्ब में से कोई एक हो और वह हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो ऐसी स्थिति में उनके स्थान पर हम बीइंग का प्रयोग करके दूसरे सेंटेंस को कॉमा से जोड़कर सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। अब रूल 3 देखें। ऐसा भी हो सकता है कि फ्री सब्जेक्ट वाला जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में हो। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्री सब्जेक्ट वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, तो उसको पैसिव वॉइस में जो है ही चेंज करते हैं। इसको हम रूल 3 के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। रूल 3, तीसरा नियम, अर्थात यदि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यदि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट अर्थात फ्री सब्जेक्ट वाला जो सेंटेंस है वह पैसिव वॉइस में है। किसमें है? पैसिव वॉइस में है। तब क्या करेंगे? जहां पर फ्री सब्जेक्ट के बाद जिस हैविंग
और V3 के पहले जिस हैविंग का प्रयोग करते थे, अब इन दोनों के बीच में आप बीन शब्द का प्रयोग करेंगे और तब V3 का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनेगा। अगर ऐसा दिया गया है तो पैसिव वॉइस में ही उसको कंबाइंड किया जाएगा और हैविंग और V3 के बीच में हम बीन शब्द का प्रयोग करेंगे। नाउ यू कैन टेक एन एग्जाम्पल। The boy was punished. The boy was punished. He felt very sorry. ये जो हैविंग है, बीन है, बीइंग है, वो एक प्रकार के पार्टिसिपल के पहले ही प्रयुक्त हो रहा है, जिसके बारे में आपको इसके पहले बताया गया था। उसके लिए अब इस वाक्य को अगर हमको दिख रहे हैं, was punished, the boy was punished, यहाँ पर यह जो वर्ब है पैसिव में है, क्योंकि पनिश करने वाला सब्जेक्ट इसमें नहीं है। द बॉय पर क्रिया हुई है, तो जिस पर क्रिया होती है वो ऑब्जेक्ट होता है। और आप जानते ही हैं कि किसी भी सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है तो वह सेंटेंस, मतलब जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्रियॉरिटी अर्थात प्रधानता होती है, वह सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में होता है। सो वी कैन से दैट दिस सिंपल सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। इस तरह से कहा जा सकता है कि यह सिंपल सेंटेंस जो है किसमें है, पैसिव वॉइस में है। इसीलिए जब आप ऐसे वाक्य को कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो यह ऐसे चेंज होगा। The boy having been punished, comma, he felt very sorry। अब यहां पर इसको हम पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं। हैविंग बीन पनिश्ड द बॉय फेल्ट सॉरी। अभी देखते हैं और भी एक एग्जांपल ले रहे हैं। उसमें जैसे मान लीजिए द कैप्टन वाज किल्ड द आर्मी फ्लेड। यहां अगर दिया गया हो द कैप्टन was killed, the captain was killed, the army, second sentence है the army fled, भगदड़ होता है। अब यहाँ पर कप्तान ही मेन होता है और कैप्टन जो है मार दिया गया। द आर्मी फ्लेड ये फ्री सब्जेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में फ्री सब्जेक्ट के साथ साथ हम देख रहे हैं कि सेंटेंस का वर्ब पैसिव वॉइस में भी है, तो इसको भी इसी तरह से कंबाइन करेंगे, हम कंबाइन कर देंगे। द कैप्टन having been killed, the captain having been killed, comma, the army fled, the captain having been killed, the army fled। तो इस तरह से हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस में जो है बदल सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस हम बना सकते हैं। एक बार और इसको समझ जाए कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब करते हैं
जब सभी वाक्यों के सब्जेक्ट्स जो है अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और उन वाक्यों की क्रियाओं के बीच एक प्रकार का काजल रिलेशन होता है, कारण या किसी परिणाम का संबंध होता है। जैसे आपको पहले एग्जाम्पल दिया गया था कि सूरज छिप गया, तारे जो है आसमान में दिखाई देने लगे, तारे आसमान में प्रकट हो गए। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि तारों का उगना और डूबना वो सूरज के ऊपर निर्भर करता है। तो सूरज फ्री है, फ्री सब्जेक्ट, इसीलिए उसको ही हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट अर्थात तारों का आसमान में दिखाई देना या न दिखाई देना वो किसके कारण होता है? सूरज के उगने या छिपने के कारण होता है। इसीलिए इस दोनों जो है वाक्य की क्रियाओं के बीच एक काजल रिलेशन पाया जाता है। इसीलिए हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके इनको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें आपको 3 विधियां पढ़ाई गई हैं। इन तीनों विधियों को जो है आप याद रखेंगे और जो है इसका प्रयोग करके आप सिंपल सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट रूल है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।